हम बुलाते हैं अपने पहले परफॉर्मर को, तहरीन जी को बुलाइए जोरदार तालियों से। तहरीन जहां कहीं भी हो, तहरीन जी आए, एक बार जोरदार तालियां, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, बात करेंगे इसके बाद। हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग मुझे शायद पहली बार देख रहे होंगे। सो हियर इज़ अ क्विक इंट्रोडक्शन फॉर दोज ऑफ यू हु नो मी एंड मोस्ट ऑफ you who don't. Hi, I am Terry. And there is only one subtle way to describe me, which is to say कि मैं सवालों का पिटारा हूँ और हर वक्त अपने दिमाग में एक ब्रह्मांड लिए चलती हूँ। मैं कविताएं लिखती हूँ, कविताएं सुनाती हूँ। Because you know that's the thing about dreams. मैं सपने देखने में बहुत यकीन करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बट मेरे सपने ना बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं, मेटाफोरिकली भी और प्रैक्टिकली भी। उन्हीं सपनों के ऊपर कुछ लिखा है, तो शुरू करते हैं। So before we get into it, just know that my dreams are not a set of love letters written with the hope of meeting my lover and being able to wake up next to each other someday. Rather, they share a kinship. They share a kinship with suicide notes turned into paper airplane from all the times when I heard a knock on my door and how every day has become a task for me to untangle the rope laying under my bed. My dreams are not the kind to scream I love yous in 100 languages, but rather the dream of an unpolished language that knows what to utter after the confession of an I love you. My dreams have never been about the regrets of uneven lines on my hand, but rather the dream to put my hands inside my heart and inside all the flesh in my body and take out the biggest, the smallest, the largest, the most minute piece of grief that belongs to me and accept it to be mine, even if it belongs to someone else, but stayed under my name. The dream of walking into a store and buying glass crockery without being afraid of breaking them someday while knowing that it was never about the glass. The dream of not a luxurious bathroom with double locking doors, but rather the dream of letting the washroom doors be the way they want, because at the end of the day, demons are always made and never found. Like the dream of a beautifully made bed that share its arm with clean walls that knows no terror scream and carry stains from last night. The bed that hugs the floor and kisses the roof and leaves no space for death to come in between or for the record under them. तो हम जब कोई सपना या मेरी तरह बहुत से सपने देखते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आपका तवक्कुल, आपकी नीयत, आपकी सब्र, आपकी मेहनत। पर जब हम कोई सपना किसी और के साथ देखते हैं, इट इज़ जस्ट बिल्ड ऑन वन सिंपल थिंग, विच इज़ योर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। क्योंकि मैं मानती हूँ फिर आपका सपना इस बुनियाद पे होता है कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार और भरोसा है। बट आई ऑलवेज वंडर कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद उन सपनों का क्या होता है। जगजीत सिंह जी कहते हैं कि तुमको भी अपनी सपने, अपने वादे याद नहीं, हम भी अपनी ख्वाब तेरी आँखों में रख कर भूल गए। So for me as well, it's not about the memories or the moments that we share, but for me it's about the dreams that we share. Because dreams, उसमें सब कुछ yellow and red and pink होता है. There is nothing black and white or grey about it. Because that has not happened yet. So उसके ऊपर कुछ अर्ज़ किया है कि एक राज है तेरा और मेरा, न दाग है उसमें न दरारे कोई, जैसे एक लकीर तेरी छूटी होगी मेरे हाथों में कहीं। बेरंग बिस्तर पर जैसे बिखेर गया था तू भंडार सवालों का, रह गया है वो बन के एक ख्वाब मेरे कोरे कागज़ पे कहे गए ख्यालों सा। एक कमरा रहता है खाली अब, कई हैं दरारें जिसमें, एक कमरा बना है भीतर उन दरारों के जो पड़ी है मेरे जिस्म में। प्यार करती हूँ पर इजहार करना मैं नहीं जानती, इसलिए सिरहाने रख कर एक खत रोज सो जाती हूँ मैं रातों में, पर सब कुछ उस पार चले जाता है जैसे कोई दरिया बसा हो इन हाथों में। 2 कदम पीछे हो जाते हैं महफिलों में, खालीपन का शोर सताता है। 2 कदम पीछे हो जाते हैं महफिलों में, खालीपन का शोर सताता है, किसी के आने का इंतज़ार भी अब उसे कहाँ भर पाता है। देखो जो झटक रहा हो अपना कुर्ता उठकर फर्श से, बहुत मुश्किल है उसका दामन थाम पाना, और आसान तो नहीं होता है जो छोड़ गए हों उनसे रिश्ता निभाना। बेशक खाली तो हो ही जाता है उनके तरफ का बिस्तर और उनके हिस्से की भी नींद हम सोते हैं। बेशक खाली तो हो ही जाता है उनके तरफ का बिस्तर और उनके हिस्से की भी नींद हम सोते हैं, पर मैं नहीं जानती कि किसी के चले जाने के बाद उनके साथ देखे हुए सपने कहाँ दफन होते हैं। जितना मैंने देखा है, जितना मैं समझती हूँ, मैं अब ये मानने लगी हूँ कि लोगों का आना जाना लगा रहता है
और एक इंसान जितना सोच और समझ सके, कुछ लोग उससे भी बेहद खूबसूरत होते हैं। ये लोग हमारी सांसों को अपनी सांसों से नहीं जोड़ते, बल्कि ये जोड़ते हैं उंगलियों के बीच में छुपी हुई दरारों को। ये लोग इतने खूबसूरत होते हैं ना कि शायद ही लफ्ज़ों में बयां कर पाएँ। पर मैं हार नहीं मानती, मैं कोशिशें करती रहती हूँ। उसी पर मेरी आखिरी कविता है कि नामुनासिब है। नामुनासिब है ये सोचना कि कुछ है जो नहीं लिखा है किसी शायर ने अपने प्रेमी के बारे में, या कि कहीं छूटी है कोई तारीख किसी के इंतज़ार में या किसी के इजहार में। लिखा है फराज से लेकर मानव कौल ने, जॉन से लेकर वैन गॉग ने, बारे में झील सी आँखों के, ये हर बार हाथ टकराने वाले इत्तेफाकों के, बारे में बदलती हवाओं के, उसके हक़ में की गई सारी दुआओं के, बारे में उसकी नफ्स के, उसके इंसान ना होने के शक पे लगी होगी लफ्ज़ दर लफ्ज़ हर बारी की उसकी, लिखा होगा हर किस्से और कायनात को नाम पर उसके। आसान है ये कहना कि कुछ है जो नहीं लिखा है इन किताबों में, पर मैं तो फिर भी लिखूंगी बारे में उस हवा के जो तुम्हें छूकर मुझे महकाती है, लिखूंगी बारे में उन उम्मीदों के जो मुझे रातों में सहलाती है, लिखूंगी बारे में उस दिल के जो तुम्हारे और मेरे हाथों में एक ही जगह है, लिखूंगी बारे में उस चांद की जो तुम्हारे हाथों में सजा है। लिखूंगी ख्वाब में तुम्हें और ख्वाबों में लिखूंगी तुम्हें हकीकत भी, लिखूंगी हर लम्हे में तुम्हें और वक्त बेवक्त भी। लिखूंगी तुमसे प्रेम पर, लिखूंगी तुम्हारे प्रेम होने पर, लिखूंगी अपने नाम पर उन चीज़ों को जो रूखी सूखी और बेजार हो, लिखूंगी नाम पर तुम्हारे सब्र इश्क और इंतज़ार को। क्योंकि मेरे खाली घर का शोर नहीं, मुझे फिर से घर बुलाने वाली पुकार हो तुम, एक टूटे हुए दिल के फिर से जुड़ जाने तक का सब्र और इंतज़ार हो तुम। That's my time, guys. Thank you.